hearty welcome and heartfelt greetings of the day. True life is lived when tiny changes occur. Everything changes, but life still goes on. The Creator created life, and true life is lived well when there is a space for change in life. I think we have all experienced this change of life in last few months. This change is impelling us to celebrate our annual function virtually. The pandemic suddenly changed everything around the world. This first ever virtual annual function is a living example of the change that is taking place in the world. What we are about to witness today in this presentation stands as a testimony to the fact that nothing, not even the pandemic, could stop the indomitable spirit of Janelians. So, I, Reena Soni, on behalf of St. Anthony Janelius Convent Higher Secondary School, Nepanagar, welcome you all to this virtual annual function 2020. Light is the symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of the world, similarly, blessing brings in our life happiness and prosperity. To make this virtual event a blessed one, let's invoke the blessing of God by kindling the lamp of wisdom and knowledge. हमारा भारत महान राष्ट्र है। सबसे प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं विविधताएं हमारे देश में है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता विभिन्न धर्मों का समावेश, जो अन्य कहीं देखने में नहीं मिलता है। कुरान से आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। गुरु ग्रंथ साहिब जी से पाठ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होविए जे लाई राहत लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बना बुरिया पार सहस। बाइबल से पाठ। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। बुद्ध वंदना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। जैन समाज का महामंत्र नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ओचायणम नमो लोय सभ्य सहुणम एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो। रामायण से मंगलाचरणम। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमिनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा।
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानीनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। It gives me great joy and honor to welcome you all to the first ever virtual annual program of St. Anthony Genovese Convent Higher Secondary School, Nepanagar. As we all know that the corona pandemic has taught us many lessons for life. In spite of the struggles and sufferings, it is remarkable that we have moved forward and have come to the end of the academic year 2021. It was possible only because of the graces and blessings from God above. Each new day is a fresh chance to try again at whatever we are working on. We have tried and are moving on, and our hope have never disappointed us, but it has motivated us to rise over the struggles of life. Today, on the occasion of our first virtual annual day, I wish to express my heartfelt gratitude to Reverend Sister Anjali, our Provincial Superior, and the management team for their timely response and support during this academic year. Sincerely acknowledge and express my heartfelt gratitude to the entire Janelian School family, teachers, parents, students, and all well-wishers for their active role and contributions during the past year. I also congratulate and thank everyone who have sacrificed a lot of time and energy in bringing up this annual program and making it a successful one. Once again, thank you to all, and I welcome you all. God bless us all. And I welcome you today. I am letter E, and I am here to say, welcome dear parents, welcome one and all. Welcome to our annual day, welcome one and all.
शिक्षा के महत्व को जानते हुए सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ द गार्डन संस्था ने सन 1996 में नेपानगर में सेंट एंथनी जिलेनियन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना, जो तब से लेकर आज तक सदैव ही अपने कार्यों में संलग्न रहा और कोरोना महामारी की इन विषम परिस्थितियों में भी विद्यालय पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निरंतर कार्य कर रहा है। उन सभी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने। साल 2020 की शुरुआत हमने प्रतिवर्ष के समान ही पूरे जोश, उत्साह व उमंग के साथ की, किंतु नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ होने से पूर्व ही पूरे विश्व को एक महामारी का सामना करना पड़ा। 25 मार्च से कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया, जो 7 मई 2020 तक जारी रहा। इन विषम परिस्थितियों में जब जून माह में कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, तो हमारी शाला के होनहार विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया, जिसके लिए 16 विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि का इनाम देकर उन्हें पुरस्कृत किया गया। लॉकडाउन खोला गया, लेकिन कड़े नियमों के साथ विद्यालयीन कक्षाएं पूर्णतः बंद कर दी गई। सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि शाला में शिक्षकों की उपस्थिति भी 50% ही होनी चाहिए। तब हमारे विद्यालय सेंट एंथनी जिलेनियंस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नेपानगर की नवीन प्राचार्य सिस्टर अर्चना एवं स्कूल मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि इन विषम परिस्थितियों में भी छात्र छात्राओं का शिक्षण रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू किया और इस कार्य को पूर्ण रूप से साकार किया। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को अच्छी तरह से ऑनलाइन पढ़ाया। साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं की आंशिक कक्षाएं नियमित लगाई गई, जिससे बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया गया और इस कार्य के लिए हमें सभी अभिभावकों का न केवल सराहना प्राप्त हुई, बल्कि पूर्ण रूपेण सहयोग भी प्राप्त हुआ। शाला में कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस विद्यालयीन प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मनाया गया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस को हमने हर वर्ष से कुछ हटकर मनाने का प्रयास किया। बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने पूरे उल्लास से भाग लिया। कुछ विद्यार्थियों द्वारा नृत्य प्रस्तुति के वीडियो भेजे गए, जिससे शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मान देते हुए ऑनलाइन शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय परिवार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जेनेलियस डे, बाल दिवस व दिवाली के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन चित्रकला, कविता पाठ एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षकों द्वारा किया गया, ताकि वे बच्चों के प्रति अपने प्यार व निष्ठा को व्यक्त कर सकें। YouTube के माध्यम से उनमें से सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों को दिखाया गया तथा इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को और कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम लाकर विद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को हमारी प्राचार्य सिस्टर अर्चना, प्रधान अध्यापिका सिस्टर ग्रेस तथा कक्षा शिक्षकों द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। हमारी प्राचार्य सिस्टर अर्चना ने USM के डायरेक्टर फादर वर्गीस और उनकी टीम द्वारा विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच को विकसित कर भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया,
जिसे सभी विद्यार्थियों ने तथा अभिभावकों ने दिल से सराहा। इसके पश्चात स्कूल मैनेजमेंट द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का त्यौहार विद्यालय परिवार ने पूरे नियमों का पालन करते हुए संक्षिप्त रूप से किंतु पूरे उल्लास से मनाया। विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की गई तथा नर्सरी से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। हमारी प्राचार्य ने अपने नए विचारों को नए तकनीक के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया। उन्होंने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं व विद्यालय परिवार के सहयोग से YouTube पर सेंट एंथनी जिलेनियंस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का एक चैनल बनाया, जिस पर समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों को वीडियो के रूप में अपलोड कर दिखाया गया, ताकि हमारे प्यारे विद्यार्थी इन विषम परिस्थितियों में भी अपने विद्यालय से दूरी महसूस न करें, उनका विकास अवरुद्ध न हो, वे हमसे वही निकटता महसूस करें जैसे शाला आने पर रहती है। हमारे इन प्रयासों को अभिभावकों ने दिल से न केवल सराहा बल्कि अपना प्यार भी दिया। इस प्यार व सहयोग के लिए हमारा विद्यालय परिवार दिल से आभारी है। हम अपेक्षा करते हैं कि जो सहयोग व प्यार हमें इन कठिन परिस्थिति में मिला है वह सदा मिलता रहेगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कर। क्या कमी रह गई देखो और सुधार कर। जब तक न सफल हो देर चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ हट भागो। कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। नेपानगर नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान, सभी नगरवासियों को शिक्षा के संबंध में नगर की शिक्षा संस्थान की ओर से और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे नेपानगर में कॉन्वेंट विद्यालय स्कूल विद्यार्थियों के विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदा ही प्रयासरत रहा है। विद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विद्यार्थियों के अनुशासन, सहयोग, भाईचारा, देश प्रेम जैसे गुणों को विकास में सबसे आगे है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भी 26 जनवरी के अवसर पर भी स्टेडियम ग्राउंड में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम की श्रृंखला में सदा ही पुरस्कृत रहा है। इस वर्ष कोविड-19 के परिस्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने अपने वर्चुअल एनुअल फंक्शन के माध्यम से देश के प्रति अपने उदार भावनाओं को प्रस्तुत किया है, जिसके लिए मैं सच्चे हृदय से विद्यालय परिवार की प्रशंसा करता हूँ। आधुनिक तकनीकी द्वारा सुंदर एवं मनोरंजन प्रस्तुति के लिए माध्यम से हर अवसर पर कार्यक्रम को रोचक बनाकर इस विद्यालय ने YouTube पर ऑनलाइन भेजकर विद्यार्थियों को शाला में जोड़कर रखने के लिए भी यह विद्यालय प्रशंसा का पात्र है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय परिवार मुझसे या नगर पालिका से किसी भी प्रकार का सहयोग चाहता है तो मैं सदा ही तैयार हूँ। इसके साथ ही मैं विद्यालय परिवार का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस वर्चुअल एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि चुना। आज हम बात करते हैं भारत देश की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिनांक 23 मार्च 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि दिनांक 24 मार्च 2020 को पूरे देश में जनता कर्फ्यू किया जाएगा, जिसमें पूरे देश ने संपूर्ण योगदान प्रदान किया। पर यह मुसीबत इतनी भी छोटी नहीं थी। इसकी विशालता, जटिलता को देखते हुए पूरे देश में पुनः 21 दिन का लॉकडाउन
घोषित किया गया, जिसके कारण आम जनता को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बीमारी ऐसी थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण लॉकडाउन भी बढ़ रहा था और लोगों की मुसीबत भी बढ़ती ही जा रही थी। देश का कारोबार बंद पड़ा हुआ था एवं सभी कर्मचारी घर बैठे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति का क्या हल निकाला जाए। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब परेशानी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों के घर में पैसे और अनाज लगभग खत्म हो चुका था। सरकार अपने स्तर पर हर मुमकिन प्रयास कर रही थी कि लोगों को जीवन व्यापन हेतु सुविधा प्रदान कर सके, पर यह इतना भी आसान नहीं था। जहां एक और संपन्न व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताकर लॉकडाउन का आनंद ले रहा था, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा था जो केवल लॉकडाउन का खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वह वर्ग अपने परिवार से कोसों दूर था और उनके मन में यह भय था कि वह अपने परिवार से कभी मिल भी पाएगा या नहीं। इन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे मजदूर परिवार भी थे जो हालातों को देखते हुए पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, क्योंकि लॉकडाउन में यातायात के सभी साधन बंद थे। फिर क्या था, कुछ लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार गए एवं कुछ ही बड़ी मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। इस मुसीबत के समय में भी कुछ लोग ऐसे उभर कर आए जो लोगों की मदद हेतु घर से बाहर निकले एवं लोगों को खाना, पानी और जीवन के लिए जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक सुविधा प्रदान की। इन कठिन परिस्थिति में भी हमारे देश के सैनिक, पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य विभाग अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों की सुरक्षा करने के लिए लगे रहे, जिसके लिए उन्हें कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़े, जिसमें से एक था लाठीचार्ज, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वजह सड़कों पर घूमता पाया गया तो उसे पुलिस द्वारा लाठी मारी गई और यह सब हमारे ही सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। जनता ने भी उनके इस प्रयास को देखकर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कई तरह से उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री जी के कहने पर थाली, ताली एवं शंख आदि चीज़ें बजाई गई। सड़कों पर फूल बिखेर कर सुरक्षा कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया गया। धीरे धीरे लॉकडाउन खुला और लोगों ने पूरी हिम्मत के साथ कोरोना को भगाने का निर्णय लिया। कामकाज सब बंद करवा के सबको कर दिया बोर। अपने घर में ऐसे जम गए हम हैं जैसे चोर। गो 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 करोना गो, गो करोना गो, गो करोना गो, गो करोना अबे तेरी तो गो करोना गो, गो करोना गो, गो करोना गो, इतना छोटा प्राणी है इंसानों पे भारी, इसको मारने के लिए किसको दे सुपारी। मास्क पहनते हम भी तो भाई गुंडे लगते हैं, पर असल में बेटा अंदर से तो सब डरे हुए हैं। सब गो 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 करोना गो। जब कोरोना की वैक्सीन निर्मित हुई तब सभी के परेशान चेहरों पर खुशी की लहर सी आ गई। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई सबको लगनी है और
सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है। इन पे क्या गुजरी तुम क्या जानो, कुछ तो सोचो ओ दीवानो। वैक्सीन देना भ्रम फैलाओ, लगवा लो वैक्सीन मेरी मानो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वैक्सीन, मैं अब आ गई हूँ, इसलिए आपको कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस ज़रूरत है कि थोड़ी सावधानी रखें। मैं आप तक जल्दी पहुँचकर आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित कर दूँगी। भारत महान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संपूर्ण विश्व में भारत ही एकमात्र राष्ट्र है जहां अनेक धर्म संप्रदाय के लोग बसते हैं। विश्व में ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आता। यह सिर्फ भारत में संभव है। धर्म जीवन जीने का स्रोत है। यह मनुष्य के जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करता है। हम भारतीय सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। भारत में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि। आइए देखते हैं इन सभी धर्मों को नमन करते हुए हमारी प्रस्तुति। जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम, लेके चले कहाँ मैं तो जानू ना। तूने मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आया, मैं हूँ तुझ में समाया तेरे
जा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाम का शातू अली का दुलारा। गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां। वे पोटा पोटा पिंजिया पिया, हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह। वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह। वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह। जरियां नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा का ढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरे बन मेरी सुना, अब तो पुकारे सुना, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे। भज मन्निरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन्निरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। मुक्तिदायक नाम। त्यागमूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संकारी, दया प्रेम मानव प्रीति प्रतिभा तू जितेश्वरी। सिद्धमूर्ति सिद्धात्मा सकला का भावी, किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जो औरों की वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं,
ये जैन होने का परिचय देते हैं। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। नई बस ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तो अब वंदे मातरम गीत पर प्रस्तुत है एक नृत्य नाटिका, जिसके माध्यम से देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, त्याग व बलिदान की भावना को व्यक्त किया।
महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरी चिकने गालों पे संभल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा गियर लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना। चल ऊपर फेंको बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। परसों का लट्टू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां,
रहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, आ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली। आया होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार,
సంజీవారి దబారింగమ్మ అవన డకిర సమయముని కొలిసి సకట గెలింగమ్మ అతావరల సమయముని సంజీవారి దబారింగమ్మ అవన డకిర సమయముని కొలిసి సకట గెలింగమ్మ కిటల కాడికే వారు మమ్మ సుడల కాడికే వారు మమ్మ కిటల కాడికే వారు మమ్మ సుడల కాడికే వారు మమ్మ ఏ ఆట ఇప్ప చూర కాడి కోపం కొండ వతిర కాడి ఆట ఇప్ప చూర కాడి கோவன் கொண்ட வத்திர காளி சிங்கம் மேலேறி கூத்தாடுவா அகிலி நெருப்பில விளையாடுவா கண்ணும் கருத்த தேவி எல்லோ சங்கரியே வாருமம்மா சிங்கம் பாயுதம்மா சிறுத்த பதுங்குதம்மா சிங்கம் பாயுதம்மா சிறுத்த பதுங்குதம்மா சிங்கம் பாயுதம்மா சிறுத்த பதுங்குதம்மா அப்பேசம் கொண்டவனே அங்காரே காளிக்கம்மாவா யாட்டா இப்ப சூரகாளி கோபம் கொண்ட வதிரகாளி சூலம் ஏந்தி கூத்தாடுவா சூரங்களைய வந்தாடுவார் முத்து பள்ளு தேவி எல்லோர் முண்ட கண்ணிய வாருமம்மா भारत के मध्य में हमारा मध्य प्रदेश है। इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति व अपनी अपनी परंपरा है। मध्य प्रदेश से जुड़े 5 राज्य हैं: महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। हमारे मध्य प्रदेश की अपनी संस्कृति व अपनी परंपरा है। इसी तरह हमारे पड़ोसी राज्यों की भी अपनी संस्कृति व अपनी परंपरा है। हम सबकी संस्कृति परंपरा का सम्मान करते हैं। हमारे देश की विशेषता है अनेकता में एकता। हम 135 करोड़ देशवासी मिलकर बनाते हैं। भारत को इसकी आन बान शान पर न्यौछावर रहने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए देखते। सायकल सायकल व मारी सोनानी सायकल सायकल पर बसीन मी कशी उतरावा सायकल सायकल व मारी सोनानी सायकल सायकल पर बसीन मी कशी मलकावा सायकल सायकल मारी सोनानी सायकल सायकल पर बसीन मी कशी मलकावा मन भूलो बदी बात
मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे होई गई रात मन भरो बदीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर छुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर छुए तारी बात रे अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट काना साका ढूना कसर घालूंगी 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी खुड़का जुत्ती मड़कन हाड़ी पहरू छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी आपकी वर्चुअल उपस्थिति पाकर यह एनुअल फंक्शन खास हुआ है। आभार प्रदर्शन की श्रृंखला में विद्यालय परिवार की ओर से मैं मिसेस अमृता पांडे हमारे शहर के नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेश चौहान का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने वीडियो मैसेज द्वारा हमारे विद्यालय के कार्यक्रम की सराहना करते हुए हमें प्रोत्साहित किया। इसी तारतम्य में मैं हमारे स्कूल मैनेजमेंट, हमारी प्राचार्य सिस्टर अर्चना और हमारी प्रधान अध्यापिका सिस्टर ग्रेस का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने कोरोना के इस संकट काल में भी विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने का सफल प्रयास किया तथा इस वर्चुअल एनुअल फंक्शन को अंजाम दिया। इसी कड़ी में मैं हमारे सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान किया। इसके बाद मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। अंत में मैं
हमारे विद्यालय के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर हमारे इस कार्यक्रम को अपने लक्ष्य तक पहुँचाया। अपनी भाषा को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे इस वर्चुअल एनुअल फंक्शन द्वारा हमने विभिन्न धर्मों व भारत की विविध संस्कृति को एक ही माला में पिरोने का प्रयास किया है तथा यह बताने का प्रयास किया है कि सभी धर्म एक हैं तथा सभी धर्मों का यही संदेश है कि विश्व का कल्याण हो, अमन व शांति बनी रहे। तो आइए देखते हैं इसी संदेश का साकार रूप। धन्यवाद। जय जय